one-dimensional steady state heat conduction. So in that, if I quickly recap it, we discussed about the temperature distribution in a plane wall case in which there was no volumetric heat generation. So सर first शोर of आ रहा है all, सर। सर आपकी आवाज hearing नहीं है। सर पीछे शोर आ रहा है, पंखा वगैरह कुछ चल रहा है इस तरह से, या कोई मशीन। क्या कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं आ रही आवाज। सर बहुत दूर से आ रही है और वो कांस्टेंट शोर से भी। चले आप just bear with me, maybe it will get better. So that's why we encourage to take classes in FTF mode, but that's fine at the moment because maybe it would get better. Okay, let me recap the lecture and then we will see. Okay, so the governing equation in the case of one-dimensional steady-state heat conduction, that was equation 12. D by dx into k into dt by dx is equal to 0. Now if we take the material to be homogeneous in which the k would become out of integration, then it would be k into d square t upon dx square, right? So if this is the case, then because k is being multiplied with this d square t divided by dx square, so k, because it is a physical quantity, it cannot be 0. So it means that d square t upon dx square is equal to 0, because that term is making it equal to 0. Now when we come to the d square t upon dx square equal to 0, if we want to determine the value of t from there, what can we do? In the last class we discussed about that. अगर आपको याद हो क्या किया था हमने? Let me start this on the whiteboard if I can do this maybe. So we have got just because I am also learning this digital tab, so just bear with me. Maybe I would get better with time. D square t upon dx square is equal to 0. Now if we do the integration on the left hand and right hand side, then we can write dt by dx is equal to c1, and then if I do another integration bit, then it would be equal to t of x is equal to c1x plus c2, right? So I have written this. So this is what kind of temperature distribution? This is a linear distribution, because here we have got x as a only one power. So this is linear temperature distribution. Now we want to find the values of T1 and T2. How can we do that? By putting in the boundary condition. ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशन इसमें क्या होगी कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर TS1 और TS2, if we put in the boundary condition we can find the values of, ये हमने पिछली बार किया था ये सब कुछ, तो वहां से C1 और C2 की वैल्यूज निकाली जा सकती हैं. Once we get the temperature distribution, which is equation 14, then we can apply the Fourier law of heat conduction to find the value of Qx, which is our desired quantity, right? Which is equation number 15. Now, after that, we discussed about thermal resistance, which is analogous to the electrical resistance, in which in case of heat transfer, the driving potential is the temperature difference, and the thing which is flowing through that circuit, that is heat transfer rate. Okay, and then we this is resistance for the conduction, which is N upon Ka, and as well as it can be defined for convection, which is 1 upon Ha. Right? So you can easily see that if the thermal conductivity is more, the thermal resistance would be low. So that's what is you can understand this more easily, because if the thermal conductivity is more, the resistance to flow would be less.
And similarly for the H, if the H value is more, then the convection resistance would be less. Right. So we discussed about the series circuit, and these things were discussed in detail. And then how to calculate and what is the use of this resistance. If we have got multi-layered object, we can use it easily to determine the heat flux from that. So uh, so this is the composite wall in which we have got three different materials, and then we have got convection on the left and convection on the right. So in this case, we can easily see that this is a series circuit with 5 resistances, 2 convection and 3 conduction resistance, right? And if we want to find the value of Qx, it would be the temperature of the hot fluid minus temperature of the cold fluid divided by all the resistances which are, in this case, they are in the parallel series, sorry, not parallel, they are in series circuit. Okay, so then in the last we discussed about U, which is used to show the effect of combined conduction and convection. So it is related with total resistance by this formula, which is U is equal to 1 upon total divided by area. So this U parameter will be used very extensively when we would be doing that heat exchanger design. In heat exchanger, we have got conduction in the pipe surface and convection between the fluid inside the pipe and outside the pipe. Okay, so in that we would be using this parameter U very extensively. So maybe its use is not very much here, but you would see its applicability in the last chapter, which is heat exchanger design. Right. So this was the slide we left our last lecture. So I hope that most of the people must have joined the DL mode class. So now we can do one numerical for this composite wall before we move on to our next topic. So this is the statement of the problem. The exterior walls of a building are a composite consisting of 10 millimeter thick plaster board. So its thermal conductivity is given, then 50 mm thick urethane foam, and again thermal conductivity is given, and 10 mm of thick soft wood. On the typical winter day, the outside and inside temperatures are minus 15 degrees centigrade. So we are talking about some northern areas where the temperature falls below 0 degrees centigrade and 20 degrees centigrade on the inner side. And then the convection coefficient are given the values of 15 and 5 watt per meter square Kelvin. So we need to calculate the what is the heating load for a 1 meter square section of the wall. So we are talking about heat flux because that is usually per unit area, right? So if we draw the schematic of the problem, it is something like this, that here we have got inner side where we have got Hi and T infinity I, and then we have got outer side where we have got minus 15 degrees centigrade. On the inner side we have got 20 degrees centigrade, and then we have got a composite wall in which we have got three different materials. One is plaster board, then we have got urethane foam, and then we have got softwood, right? So now all we need to do is to find the Q value. So that is very simple. If we take T infinity 1 minus T infinity 2 divided by that R total. So what is R total here? How many resistances? 5. The first one is the convection resistance on the inner side. So that value would be equal to 1 upon Hi into area I. Area I in this case would be equal to 1. AI because we are talking about per unit area. And then for second resistance would be L, conduction resistance to this plaster board, and that would be equal to LP divided by K into area of course 1. Then we have another one for the this styrofoam and then wood. So these woods
and styrofoam, they are usually used for the insulation purposes. So, and wood is also used for the aesthetic look of the inner room, or maybe here it is outer. So if we do this, you can see that here we have got T infinity I, which is 20 degrees, then T infinity out, which is the free stream temperature of the outside, which is minus 15. And then we can easily see this whole term, that is R total. So R total is the total resistance. So first of all, inner convection resistance, and the three conduction resistances, and then we have got the convection resistance of the outer wall, right? So from here, if we do the calculation, we can easily see that Q value is 15 watts. So now the second part. Second part is, what is the heat transfer load if the composite wall is replaced by a 3 mm thick glass pane window, right? So now we are talking about some buildings made of glass. Now we want to know that how much heat transfer would be there. Now, before you do any calculation, what can you guess that in the first case, the Q value was 15. So in the second case, it should be greater than 15 watt per meter square, or it should be less Q, less Q. हाँ, तो combined इसमें टोटल कितनी थिकनेस है 70 mm, और that is replaced by only 3 mm thick glass. ठीक है. Now 70 mm thick wall is replaced by a 3 mm thick wall. So it is almost 13 times less. ठीक है, 13 times, no, not 30 times, it is like 23 times, right? 23 times ये थिन है. तो unless K की वैल्यू बहुत कम हो, the heat load would increase. ठीक है. तो अब उसकी स्कीमेटिक देखें. हमारे पास सिर्फ एक ग्लास प्लेट है जो कि 3 mm थिक है. तो टोटल रेजिस्टेंसेस कितनी हो जाएंगी? 3, जिसके अंदर 2 कन्वेक्शन रेजिस्टेंसेस हैं और एक कंडक्शन रेजिस्टेंस है. तो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट we can calculate its value. The value of this L is a capital L. This is the thickness, which is 3 mm, divided by thermal conductivity of glass, that is given. And then if you can see that it is 130, so it has increased by more than 8 times. ठीक है. तो heating load and cooling load usually increase when we use glass buildings made of glass. ठीक है. So aesthetically they look very good, but usually they carry very high demand of heating and cooling load. ठीक है. कूलिंग लोड भी, क्योंकि गर्मियों में फिर एसी भी चलाना होता है, तो फिर जो कूलिंग लोड है वो भी उसी तरह बढ़ जाता है. जैसे हीटिंग लोड बढ़ गया है तो फिर कूलिंग लोड भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जितनी हीट बाहर जा रही है उतनी ज़्यादा अंदर हीट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी टू मेंटेन दैट 20 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. So I hope that this problem is clear. Now we are staying with the plane wall case. Plane wall जिसके अंदर Cartesian coordinates use कर सकते हैं. Now we add a layer of complexity to it. What would be the next layer of complexity if the governing equation is this? ये equation थी ना, इसमें next layer of complexity क्या add कर सकते हैं हम? वन डिमेंशनल विद हीट जनरेशन. ठीक है. यानी कि इसके अंदर अगर वन डिमेंशनल ये रहे, स्टडी स्टेट रहे, लेकिन इसके अंदर हीट जनरेशन वाली टर्म भी ऐड की जा सकती है. तो अगर वो वाली टर्म हम ऐड कर दें, तो नाउ वी आर गोइंग टू सी इट्स इफेक्ट ऑन द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. तो ये आप कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये आप देख लीजिएगा अपने ऑन टाइम पे. ये आपके होमवर्क प्रॉब्लम है. इट
would give you a better idea that how to tackle these problems. ठीक है, ये इनको पैरा का 6th एडिशन अगर आप 6 से कर लें तो हाँ जी 6 से कर लें, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि हमारे पास हम एक वॉल कंसिडर कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन है, कोई भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से हीट जनरेट हो रही है। अब उसमें जो हमारी गवर्निंग इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, डी स्केयर टी अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस क्यू डॉट अपॉन के इज इक्वल टू 0। नाउ फ्रॉम 25 वी नीड टू डिटरमिन द बेसिक्स, so do it on digital notepad. So I hope that now things would be a little bit more clear. और दूसरी चीज ये होगी कि स्पीड रास्ता हो जाएगी which is the which would help understand things better. ठीक है, d square t upon dx square is equal to minus q dot upon k. ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। अगर दोनों साइड पे हम इंटीग्रेशन कर लें तो हमारे पास यहाँ पे पहली साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू डॉट अपॉन के इंटू एक्स प्लस C1। ठीक है, यानी कि क्यू डॉट अपॉन के इंटू एक्स है ये, सॉरी ये ऐसे होगा। ठीक है, क्यू डॉट अपॉन के प्लस C1। दूसरी तरह इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू डॉट एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 प्लस C1 एक्स प्लस C2। ठीक है जी, तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब दोबारा हमने C1 और C2 की वैल्यू अगर मैं दोबारा आपको यहाँ पे ले जाऊँ तो तकरीबन यही रिलेशन है जो कि डिवाइडेड बाय 2 था, वो 2 इधर। अब हमने दोबारा C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है। इज इट टू डिफिकल्ट टास्क इफ वी आर नोन नाउ वन थिंग यू नीड टू सी हियर that for this case we have started x from the center of the wall, not from the left hand side. So if it is x is equal to 0, the center plane, then the total thickness is 2l। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर x की वैल्यू क्या होगी, माइनस l, और जो राइट हैंड साइड के ऊपर जो x की वैल्यू होगी वो प्लस l होगी। ठीक है, ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब हमारे पास दोबारा हम C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है, तो एट x इज इक्वल टू माइनस l वी हैव गॉट t इज इक्वल टू ts1 एंड एट x इज इक्वल टू l वी हैव गॉट t इज इक्वल टू ts2। तो लेट्स डू द कैलकुलेशन अ लिटिल बिट, देखने के लिए कि ये यहाँ पे अगर हम जब हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस l था तो हमारे पास ts1 था, हमने यहाँ पे ts1 पुट कर दिया माइनस क्यू डॉट अपॉन के एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब ये एल माइनस एल था लेकिन क्योंकि स्क्वायर है तो वो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये ठीक है जी, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। नहीं 2 पे नहीं आ रहा, 2 तो इसके साथ है ना, 2 यहाँ पे लिख लें, इसको हम यहाँ से यहाँ से हम इसको उठा देते हैं। ठीक है, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, और आगे क्या आ जाएगा, आगे क्या आएगा, माइनस C1 L प्लस C2। इसी तरह एट x इज इक्वल टू प्लस L वी हैव गॉट TS2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, TS2 इज इक्वल टू माइनस क्यू डॉट अपॉन 2k, नहीं माइनस ही होगा क्योंकि x वाला जोन सा है, x में वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, तो x में अगर माइनस एल भी पुट कर रहे हैं उसका स्क्वायर लेंगे तो प्लस एल स्क्वायर आएगा, और इसी तरह अगर पॉजिटिव तो उसकी वैल्यू वैसी होगी प्लस C1L प्लस C2, यही आएगा, कोई डिफिकल्टी इसमें। अब इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, ये है ना, तो अगर हम इसको
सिंपली ऐड कर लें, ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, TS1 प्लस TS2 माइनस Q डॉट अपॉन के एल स्केयर, जो दूसरी टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी प्लस 2C2। ठीक है जी, ऐसे ही है ना, तो गलत तो नहीं किया मैंने। तो यहाँ पे अगर C2 की वैल्यू मैं लिखना चाहूँ तो मेरे पास C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, C2 वुड बी इक्वल टू Q डॉट एल स्केयर अपॉन 2K प्लस TS1 प्लस TS2 डिवाइडेड बाय, यही वैल्यू आ रही है। अब अगर हम ये जो ऊपर रिलेशन लिखा है इसको अगर प्लस के बजाय माइनस कर देंगे तो फिर C1 की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, प्लस करेंगे तो ये C2 वाली टर्म भी कट जाएगी और ये वाली टर्म भी कट जाएगी, पहली और थर्ड टर्म कट जाएगी और TS1 माइनस TS2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा ना उस केस में। तो क्योंकि वो आप कर सकते हैं कैलकुलेशन, एक जी हाँ जी, TS2 माइनस TS1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा C1 की वैल्यू। तो अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाके देखें जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हैं, तो ये बाउंड्री कंडीशन मैंने आपको बता दी थी कि ये इसकी इक्वल है। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमने C2 की सबसे पहले कैलकुलेट की है ना अभी वैल्यू व्हाइट बोर्ड पे, तो वो Q डॉट अपॉन 2K एल स्क्वायर प्लस दिस, और C1 की वैल्यू जैसे कि अभी मेरे ख्याल है हैदर अली ने बताया कि दैट वैल्यू इज इक्वल टू TS2 माइनस TS1 डिवाइडेड बाय 2L। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने उसको पुट किया इस रिलेशन में। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे C1 था उसकी जगह C1 की वैल्यू पुट कर दी और फिर साथ में C2 पुट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब जी अगर मैं यहाँ पे ले जाऊँ आपको, यहाँ पे हमने इसको प्लस किया था ना, ऐड किया था दोनों इक्वेशंस को, अगर माइनस कर देंगे तो क्या होगा, ठहरे कर लेते हैं इसको माइनस। इसको अगर माइनस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू, अच्छा इससे होगा, मैं ये सीख रहा हूँ, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ दिस, सो आई एम नॉट वेरी गुड एट दिस एट द मोमेंट, सो जस्ट बेयर विद मी। तो अब अगर हम इसको इसको हम अगर माइनस कर दें तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे माइनस। जब ये माइनस आ जाएगा तो ये वाली चीज़ कट जाएगी और ये वाली चीज़ भी कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, TS1 माइनस TS2 जो कि उस लेफ्ट हैंड साइड पे था, और राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, माइनस 2C1 into length. Now if we calculate C1 from here, that would be equal to TS2 minus TS1 divided by 2, ये वाली चीज। ठीक है जी, इसमें ही अब सॉरी, तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर है। C1 इज इक्वल टू TS2 माइनस TS1 डिवाइडेड बाय लेंथ। तो मेरा ख्याल है तकरीबन वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे इसमें। So now if we put in those values in the last equation, we can get this kind of quite cumbersome equation. So first of all, what is the difference when we include volumetric heat generation? What is the effect on the temperature distribution as compared to the temperature distribution when there is no volumetric heat generation? We have got a quadratic term here. क्योंकि जो प्लेन बॉल केस थी विदाउट वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन उसमें C1x प्लस C2 था, वो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन थी। अब ये क्वाड्रेटिक डिस्ट्रीब्यूशन है। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, तो क्वाड्रेटिक का मतलब ये है कि वो जो क्वाड्रेटिक फंक्शन। नाउ दिस इक्वेशन वुड बी ग्रेटली सिंप्लीफाइड if the temperature at the both surfaces which is left and right, if
if the temperature at the both surfaces is equal. In that case, this term would be equal to 0. जो सेकंड टर्म है, क्योंकि TS2 और TS1 अगर इक्वल है तो वो 0 हो जाएगा, और ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, TS। और उस केस में जो हमारी जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी वो पैराबोलिक टाइप हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो पैराबोलिक टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है इन अ वे। आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पे हो रहा है, ये मिड प्लेन पे जहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब हमें पता है कि हीट हमेशा ट्रांसफर होती है फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कोई भी हीट ये x इज इक्वल टू 0 वाले प्लेन को क्रॉस नहीं कर सकती। इट कैन नॉट क्रॉस x इज इक्वल टू 0 प्लेन। ऑल द हीट वुड गो फ्रॉम दिस side to this side and from this side to this side. So this is kind of an adiabatic plane. इसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। सिमेट्री, जो सिमेट्री क्यों कह रहे हैं कि जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है जो लेफ्ट पे है वही राइट पे है। ठीक है, तो इन अ वे दिस इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अच्छा जी, तो हमारे पास यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन आई, आप देखें 28 और 27 में कंपैरिजन, इट इज क्वाइट सिंपल है। ठीक है, क्योंकि हमने TS1 इज इक्वल टू TS2 विच इज इक्वल टू TS हमने ये पुट कर, ठीक हो गया। अब अगर वुड बी द प्लेन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर है, मिडल प्लेन के ऊपर x की वैल्यू क्या है, 0। तो अगर वो वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो T ऑफ 0 की वैल्यू आ जाएगी TS प्लस Q डॉट L स्क्वायर अपॉन 2K। ठीक है, सो लेट्स डू इट ऑन द व्हाइट बोर्ड अगेन। दिस थिंग में भी हमारे पास जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन अभी लास्ट बार में रिपीट कर देता हूँ। मैंने अभी बात की है कि जब TS1 इज इक्वल टू TS2 इज इक्वल टू TS होगा, ये 27 इक्वेशन 28 बन जाएगी। आई थिंक दिस इज क्लियर। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर इस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो मैक्सिमम टेम्परेचर इट इज एट द मिड प्लेन। नाउ heat always flow from the higher temperature to lower temperature. Now it means that because we have got temperature maxima here, so no heat can cross this in the x direction. तो जितनी भी हीट होगी या वो इस प्लेन से राइट की तरफ जाएगी या वो इस प्लेन से लेफ्ट की तरफ जाएगी। ठीक है आतिफ, आपका शोर आ रहा है बेटा, आपके माइक का प्रॉब्लम है, आई कैंट हियर यू। जी जी बेटा, आपकी प्रॉब्लम है जी। अब क्लियर हो गई बात जी, थैंक यू। नाउ जी की बात कर रहे हैं जी, वो वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म वॉल्यूमेट्रिक हीट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आर स्पेसिफिक heat generation at a specific point. We are talking about a uniform volumetric heat for the time being. ठीक है, अच्छा जी। Now if we write this, we have got equation T of x is equal to Q dot L square upon 2K 1 minus x square divided by L square plus TS. Now if we put T is equal to 0, then it would be T of 0, which would be written like T of 0, right? That is equal to Q dot L square upon 2K plus TS, right? Any problem with this? Now if we let me now if we write the first equation in an expanded form, ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी है इसको एक्सपेंड करें, इसको हम लिख सकते हैं T of x is equal to Q dot L square upon 2K plus TS minus Q dot L square, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2
k x square divided by L square. Anything wrong? We have written the first equation in an expanded form. Now you can readily see that the first term is equal to, ये जो पहली दो टर्म्स हैं ये किसके इक्वल हैं? ये टी नॉट के इक्वल है जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही है। और अगर ये जो सेकंड इक्वेशन है यहाँ से हम यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो यहाँ से वैल्यू निकालें टी एस माइनस टी नॉट की, वो किसके इक्वल आएगी? टी एस माइनस टी नॉट की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? माइनस क्यू डॉट एल स्क्वेयर अपॉन 2k, यही आएगी ना? इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विद दिस? ठीक है, वो आप देख सकते हैं वो यहाँ पे है ना? तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या आ जाएगी फिर? टी एक्स, सॉरी ये अभी ना वो फ्री बेटर। अच्छा जी, तो अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है। अब सबसे पहले हम करते हैं टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी नॉट माइनस टी एस माइनस टी नॉट इंटू एक्स स्क्वेयर बाय एल स्क्वेयर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को भी कि ये इक्वेशन कैसे लिखी है हमने? कहाँ पे प्लस होगा? एक्सीलेंट, ये प्लस होगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच हैदर अली। इट शुड बी प्लस क्योंकि वो माइनस यहाँ पे गेटर 4 हो गया, ठीक हो गया। तो इसको हम अब इस इक्वेशन को हम दोबारा थोड़ा सा टेम्परेचर ग्रेडियंट के फॉर्म में लिख सकते हैं कि टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ नॉट डिवाइडेड बाय टी ऑफ एक्स माइनस टी नॉट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है जी, कोई चीज गलत, मैथमेटिकली एवरीथिंग इज करेक्ट। So now you can see that we have written it in terms of temperature difference, ratio of temperature difference. ठीक है, we can readily see that this is the चलो, I hope that this thing is clear. So we have done up till this point t of x minus t naught is equal to ts minus t naught। ये अभी हमने यहाँ पे डेरिवेशन भी की है, ठीक है जी, ये आपको क्लियर होगी। अब अगर जहाँ पे इसका हम ग्रेडियंट लें एट एक्स इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 अपॉन टी एक्स माइनस टी नॉट इंटू डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई एल स्क्वेयर। अब अगर x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट इज 0 एट द लाइन ऑफ सिमेट्री, जो कि सेंटर लाइन, ठीक है। अब कई ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पे हमें सरफेस टेम्परेचर नहीं पता होता, बल्कि कन्वेक्शन की बाउंड्री कंडीशन होती है। तो उसमें फिर हम माइनस के डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एच इंटू टी एस माइनस टी इन्फिनिटी वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर हमने ये वाला निकालनी हो माइनस के डी टी बाई डी एक्स इंटू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एल, ये कौन सी लोकेशन है? ये जो राइट हैंड साइड पे ये जो वॉल है ये वो वाली लोकेशन है। एनी क्वेरी? बेटा माइक ऑफ कर दें अगर आपने कुछ नहीं पूछना। So now let's see. अब देखिए हमारे पास टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन किसके इक्वल थी? टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू
q डॉट l स्क्वायर अपॉन 2k 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय l स्क्वायर प्लस ts, ये थी ना। यहाँ से dt बाई dx निकालें, वो किसकी इक्वल आ जाएगा, q डॉट l स्क्वायर अपॉन 2k माइनस 2x अपॉन l स्क्वायर। ठीक है जी। अब अगर हमने यहाँ पे ये l स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इससे, ये 2 कैंसिल हो जाएगा इससे, और अगर हमने यहाँ पे माइनस के डी टी बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एल करना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू डॉट एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, और ये माइनस है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय के। तो हमारे पास ये वाली क्वांटिटी आ गई, q डॉट एल डिवाइडेड बाय के। ठीक है। अब अगर वहां पे देखें, q डॉट एल डिवाइडेड बाय के इज इक्वल टू h इंटू टी एस। अब ये कन्वेक्टिव बाउंड्री कंडीशन की बात कर रहे हैं कि जो भी कंडक्शन के थ्रू आ रहा है उस वहां पे दैट इज बीइंग रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग बाय कन्वेक्शन। तो अगर हम ये जो h q डॉट जी, हाँ, ये के क्यों नहीं आएगा, क्योंकि के उससे कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्यू डॉट एल आएगा। तो क्यू डॉट एल इज इक्वल टू एच इंटू टी एस माइनस टी इंफिनिटी। एक्सीलेंट ऑब्जर्वेशन। ये के क्योंकि वहां पे भी के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो के से कैंसिल हो जाएगा, एंड देन फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी एस। तो टी एस वुड बी इक्वल टू क्यू डॉट एल अपॉन एच प्लस टी इंफिनिटी। ये हमारे पास टी एस की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ टी इंफिनिटी। टी इंफिनिटी क्या है, ये फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर। ठीक है जी। तो नाउ वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ टी एस विच इज इक्वल टू टी इंफिनिटी प्लस क्यू डॉट अपॉन एल। ठीक है। क्यू डॉट टी एस इज इक्वल टू टी इंफिनिटी प्लस क्यू डॉट एल डिवाइडेड बाय एल। And now we are going to do one numerical problem for this case. चलिए एक पार्ट कर लेते हैं उसका। सर जी टाइम कम है सर, भूल जाएंगे फिर दूसरा पार्ट सर, एक साथ करेंगे सर। चलें ठीक है, ओके जी। इफ वी बिल्कुल मैं ये any question you can take this time to ask any query, DL mode students as well as FTF. So I hope that now we have started to use this graphic tablet. Maybe the understanding level would increase a little bit, because we used to do these type of things on the whiteboard, लेकिन unfortunately जी बताइए सर थोड़ा आहिस्ता पढ़ाया करें। बात आपकी बिल्कुल ठीक है अरहम, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती प्लीज़ बेटा पूछा करें, लेकिन मेरा तो ख्याल है कि अभी तक स्पीड ठीक ही है। क्या ख्याल है सर नहीं